before I explain what freestyling is, I would like to clear this one confusion that people have about freestyling and free verse. Freestyling is basically coming up with your style, with your rhymes on the spot, spontaneously on a beat or without a beat. But sometimes there are some people who have already written a rap song which they go and perform on random beats in a cypher or in a freestyle session. That is called a free verse. It cannot be confused with freestyling. What freestyling basically is that coming up with rhymes or coming up with ideas for a song or sentences on a beat spontaneously. When you have not already written for a song, you have not already penned down your lyrics, you are just listening to a beat, jamming on it, and you're trying to come up with something on the beat on the spot, like spontaneously. That's what the whole freestyling is. Now, freestyling is not only in rap; it's also in other, in other sections, other elements of hip hop. Like breakers, b-boys have freestyle sessions where they come up with dance moves on the spot on a random beat. That's what they mostly do. So, freestyling is basically free art, like spontaneous art, which you perform while jamming. Free art basically break dancers freestyle करते हैं. They make or create a unique move on floor. DJs scratch करके freestyle करते हैं. Graffiti artists wall paint करके freestyle करते हैं. Beatboxers beatbox पे freestyle करते हैं. Everyone has a unique on-spot ideas to create a beautiful art, और it should be meaningful. ऐसा नहीं कि कुछ भी randomly on-spot कुछ भी बोल दिया. That is not a freestyle. Freestyle should make sense, and I think this is what I believe in. Yeah, and freestyling ये बहुत ही पुराना, it's a very old activity जो hip hop ciphers में या jam sessions में होते आ रही है since the beginning of hip hop. Since जब से hip hop शुरू हुआ तब से freestyling का art होते आ रहा है. In fact, I would say initially hip hop was all about freestyling. It was about free art. Now because it's become commercial, people पहले से ही गाने अपने लिखते हैं. But जब hip hop initially शुरू हुआ था, it was all freestyling. It was all spontaneous art which was performed on the streets. The people who are now just getting into rap, जो लोग अभी freestyle करना शुरू कर रहे हैं, उन लोगों को मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि freestyling is not about perfecting. It's about the practice to perfect your art further. तो जब भी आप फ्री स्टाइल कर रहे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके राइम्स एकदम परफेक्ट ही होने चाहिए या आपका वर्ड टू वर्ड, सिलेबल टू सिलेबल राइम होना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द टाइम व्हेन यू आर डूइंग समथिंग स्पॉन्टेनियसली इन योर हेड. तो ज़रूरी नहीं है कि आप परफेक्ट ही हो. यू कैन ऑल्सो यूज राइम्स लाइक स्लांट राइम्स होते हैं विच साउंड सिमिलर टू अ पर्टिकुलर, इट्स नॉट द एग्जैक्ट राइम बट इट्स सोनिकली सुनने में वो सिमिलर साउंड करता है. तो all these kind of things you can use in a freestyle. It's all about improvisation. जैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे अपने freestyle को, आपको मौका मिलेगा, आप improvise करो उसमें. अगर आप 2 rhymes के bars बोल रहे हो, आगे जाके आप ट्राई करो कि इन लाइन राइम्स भी यूज करो, या 3 या 4 सिलेबल्स या 5 सिलेबल्स ट्राई करो. तो आप उस तरह से आप इम्प्रोवाइज करते हो जैसे आप फ्रीस्टाइल में आगे बढ़ते जाते हो. या 4 और 5 सिलेबल मेक इट मोर स्ट्रॉन्गर. जब आप 4 या 5 मल्टी सिलेबल्स यूज करते हैं, वो और स्ट्रॉन्ग, आपका फ्रीस्टाइल और स्ट्रॉन्ग साउंड करता है, और इससे आपकी टेक्निकलिटीज पर चलते हैं कि आप कितने टेक्निकल हो while spitting the bars. So these are the few points I think really important while learning freestyle, कि किस किस तरीके से freestyle किया जा सकता है और freestyle किस लिए important है. जब freestyle का प्रोसेस होता है मेरा बहुत अलग है. मैं जब किसी बिल्कुल बिगिनर के साथ बैठता हूँ और उसको सिखाता हूँ. धवल का उसका खुद का अपना स्टाइल है सिखाने का, मेरा खुद का एकदम अलग स्टाइल है. सो मेरा फर्स्ट सेशन होता है ब्रेन ट्रेनिंग, जिसमें मैं मेट्रोनोम चला देता हूँ एंड आई लेट देम लिसन द मेट्रोनोम फॉर 5 or 10 minutes, और आई लेट देम स्पीक एनीथिंग whatever they feel like. I tell them to tell me about their lifestyle, और उन्होंने आज पूरे दिन भर क्या किया है, कहाँ से हैं, किधर से बिलोंग करते हैं. पहला मैं स्पीच सेशन करता हूँ उनके साथ मेट्रोनोम के ऊपर, विच इज़ अ ब्रेन ट्रेनिंग, सो जिससे उनको समझ आता है कि अच्छा बीट स्पीड पे चल रही है. आफ्टर दैट स्लोली आई अपग्रेडेड. मैं उनको पहले बोलता हूँ, बीट चलाता हूँ उनके सामने, बोलता हूँ कि आज का अपना पूरा दिन का मेरे को स्टोरी बताओ राइम करके बीट के ऊपर. Or if you want to do a slant rhyme also, you want to skip the rhyme pattern or jump into the another rhyme scheme, वो भी कर सकते हो, जो भी तुम्हें मन कर रहा है, but just be on beat. Make sure that you are on a beat. इस प्रोसेस से क्या होता है, उनको समझ आता है कि उनको बीट के ऊपर रहना है फ्रीस्टाइल करते हुए. ये प्रोसेस खत्म होता है, आई टेल देम नरेट स्टोरी. कोई भी एक स्टोरी उठा के किसी भी चीज़ की
बीट के ऊपर बोलना चालू करो, डोंट वरी अबाउट द राइम, डोंट डू द राइम। ये होते ही फाइनल आई स्टार्टेड गिविंग देम वर्ड्स एंड आई टेल देम राइम्स यूज करके इन वर्ड को डिफाइन करो बीट के ऊपर। सो लाइक अगर नेता, अभिनेता, पुलिस, कर्मचारी, ये सब वर्ड्स देख के मैं उनको बोलता हूँ ओके स्टार्ट फ्री स्टाइलिंग। जब ये सेशन खत्म होता है, इसके बाद आता है मेन। Now you have to narrate whatever is going inside your brain, but it should make sense. So this is my style to teach kids, my students, and I am sure धवल का अपना एक अलग स्टाइल होगा सिखाने का, अपग्रेड करने का, जिनको भी वो सिखाता है अपने आसपास। फ्री स्टाइलिंग जब मैंने शुरू किया, मैंने अपने दोस्तों के साथ में बैठ के शुरू किया। हम लोग बॉम्बे में दादर में एक जगह है नारली बाग करके, वहाँ पे हम लोग साइफर सेशंस करते थे। वहाँ पे कई रैपर्स आते थे जो मेरे साथ में ही लाइक दे वर रैपिंग, मेकिंग म्यूजिक। व्हाट वी यूज्ड टू डू इज वी यूज्ड टू गेट इन अ सर्कल एंड वी यूज्ड टू टेक टर्न्स। मैं अपना बीट बॉक्सेस होते थे, क्योंकि जब आप स्ट्रीट्स पे कर रहे हो ये सारी चीज़ें तो म्यूजिक बजाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वी यूज्ड टू गेट बीट बॉक्सेस जो हम लोग को कोई भी उनके मन में जो आए वो बीट देते थे हम लोग को। और जब भी वो हो रहा है, मेरा फ्री स्टाइलिंग करने का प्रोसेस ये था कि मैं आजू बाजू में देखता था मेरे क्या है, आजू बाजू में लोग कौन है, किसी का नाम मुझे इंटरेस्टिंग लगा। जैसे कि अगर किसी का नाम होगा कमल, तो कमल के 3 सिलेबल्स है कमल, तो मैं सोचता था कि कमल पे और 3 सिलेबल्स के राइम्स की मैं कैसे सोचूं। सो जब मैं फ्री स्टाइल करना शुरू करता हूँ, मैं जो पहला राइम बोलता हूँ उसके बाद में मैं सेंटेंस फ्रेम करने को टाइम लेता हूँ थोड़ा। जैसे अगर मैंने बोल दिया कि मेरा नाम है धवल, और फिर अगर अगला लाइन मुझे बोलना हो तो मैं पहले थोड़ा सा 1-2 लाइन्स मैं जाने दूंगा, और उसके बाद में फिर एंड में राइम यूज करूंगा कमल। बट मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं बीट पे हूँ, मैं ऑफ ट्रैक नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज जैसे आप ऑफ ट्रैक जाते हो फिर वो गाना बहुत ही अब्रप्ट साउंड करने लगता है और फिर लोगों का इंटरेस्ट उसमें छूट जाता है। सो आपको फ्लो और आपका रिदम फ्री स्टाइल करने के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइम्स आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा जब फ्री स्टाइल कर रहे हो कि राइम्स जल्दी जल्दी सोच पाओ। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल होगा, शुरुआत में ये आपसे होगा नहीं, शुरुआत में शायद एक वर्ड भी ना निकले। ऐसा हुआ है कि कभी कभी एक वर्ड भी नहीं निकलता है फ्री स्टाइल करने के टाइम। बट ये आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर है और आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, उतना आप स्मूथ हो जाओगे जब आप राइम कर रहे हो किसी बीट के ऊपर। तो मेरा यही प्रोसेस रहता है कि मैं आजू बाजू लोगों को देखता हूँ, मैं यहाँ वहाँ से वर्ड्स उठाता हूँ। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ टायर को मैं राइम करूँगा फायर से, लायर से, ये सब चीज़ें मैंने अपने आप को ट्रेन की है प्रैक्टिस कर करके एवरी डे। जैसे हम लोग कभी कभी गेम्स खेलते हैं, हिप हॉप गेम्स। हिम ने भी मेरे साथ बहुत बार खेले हिप हॉप गेम्स। फ्री स्टाइलिंग चल रही है, हम लोग एक बीट प्ले कर रहे हैं और कोई ना कोई हमको एक शब्द बीच में बोल देता है, और वो शब्द लेके हम लोग उसके राइम्स निकाल के उसके ऊपर रैप करना शुरू करते हैं। तो इससे क्या होता है, चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। चैलेंजेस बढ़ते तो वी पुश आवरसेल्फ मोर, हमारे दिमाग को हम लोग और थोड़ा पुश करते हैं आगे। बट अगेन इसमें कोई प्रेशर लेने वाली बात नहीं है। कभी कभी मैं अकेले बैठ के भी फ्री स्टाइल करता हूँ, कभी कभी मैं घर पे मुझे बोर हो रहा है या मुझे कुछ बीट पे लिखना है या इंस्पिरेशन चाहिए, तो फ्री स्टाइल करके मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, आइडियाज़ बहुत आते हैं लिखने के लिए और ये सब करने के लिए। तो मैं बहुत बार चूकता हूँ, बट अकेले में हूँ तो कोई मुझे देख नहीं रहा है, तो किसको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि मैंने गलती की। बट वो गलती सुधारने का फिर टाइम आगे जाके मिलता है जब आप एक्चुअल में फ्री स्टाइल। व्हाट आई बिलीव इन, फ्री स्टाइल करने से आपका फ्लो भी परफेक्ट आता है। यू कम अप विद यूनिक आइडियाज, यूनिक फ्लो, एंड देन आफ्टर दैट द लिरिक्स। अगर आपने कुछ अच्छी नॉलेज वाली बात बोली है, कुछ अच्छा ढंग का बोला है, you can pick up those line and use in your main track, जो भी आप बना रहे हो या कुछ भी आप प्लान करने वाले हो। So freestyle is really important and these are the few pointers जिनके थ्रू आप freestyle सीख सकते हो। Like धवल ने जैसे बताया, धवल का तरीका, मेरा जो तरीका है, जिस तरीके से मैं अपग्रेड करता हूँ, फाइनल जो भी मेरा निकलता है, आउटकम निकलता है सिखाने के बाद। जब भी आप शुरुआत में जब भी आप फ्री स्टाइल करना प्रैक्टिस करोगे, नए जब आप होगे, तब ज़रूरी नहीं है कि आपका हर एक सेंटेंस, हर एक फ्रेमिंग परफेक्ट हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि राइम सोचने में इतना टाइम निकल जाता है कि हम लोग राइम नहीं कर पाते टाइम पे। बट इसमें कोई डरने की चीज़ नहीं है, क्योंकि जितना आप ज़्यादा करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतने आपके राइम्स परफेक्ट होंगे। बिकॉज अगर मैं अभी मैंने बैठे बैठे यहाँ पे टायर पे फायर, लायर और ये सब चीज़ें सोच ली, तो सोचो अगर आप रोज अगर प्रैक्टिस करोगे तो टायर के एटलीस्ट 10 या 15 राइम तो आपके दिमाग में फिट हो गए हैं, जो कभी भी आपके मुंह से निकल सकते हैं। और टायर तो हर जगह होता है, तो आप रास्ते पे खड़े होकर फ्री स्टाइल कर रहे हो तो टायर बहुत अच्छा टॉपिक है। शायर फ्री स्टाइलिंग करना भी एक रैपर के लिए रियाज जैसा है।
मतलब अगर हम लोग रोज फ्री स्टाइलिंग करेंगे तो हमको हमारे मिस्टेक्स सामने आते रहेंगे और उस मिस्टेक पे हम लोग को काम करने का मौका मिलेगा। तो जब तुम्हारा बड़ा शो होगा, जैसे मैं फ्री स्टाइल प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं अपने ब्रेथ को भी प्रैक्टिस करता हूँ, मैं अपने वर्ड्स के क्लैरिटी को प्रैक्टिस करता हूँ, मैं अपने डिलीवरी को प्रैक्टिस करता हूँ कि कैसे एक्सप्रेशंस में बोलूँ। तो ये सारी चीज़ें जब मैं स्टेज पे परफॉर्म करता हूँ फ्री स्टाइलिंग के प्रैक्टिस की वजह से मेरी वहाँ पे परफेक्ट चीज़ें निकलती है, बिकॉज मैंने पूरे दिन में फ्री स्टाइल किया हुआ है, पूरे दिन में मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है मेरे गानों को, तो वो फ्लॉलेस निकलता है जब मैं स्टेज पे जाता हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ चुका है, क्योंकि मैंने इतनी बार वो प्रैक्टिस कर लिया। और दूसरा फ्री स्टाइल का व्हाट आई थिंक कि फ्री स्टाइल का सबसे जो मैंने खुद देखा हुआ है लाइव शोज पे, आई हैव सीन माय फ्रेंड्स जो लिरिक्स भूल गए ऑन स्टेज एंड दे स्टार्टेड फ्री स्टाइलिंग। किसी को नीचे वाले को आपके लिरिक्स नहीं पता है yes. और उन्होंने फ्री स्टाइल करना चालू कर दिया, बट मुझे पता है कि ये फ्री स्टाइल कर रहा है ऑन स्पॉट एंड इट वाज आल्सो मेकिंग अ सेंस एंड पीपल आर वाइबिंग अलोंग विद हिम। सो इससे क्या होता है कि आपका स्टेज प्रेजेंस अच्छा होता है। दूसरा जो भी अगर मान लो बाय चांस आप स्टेज पे अपने लिरिक्स भूल गए तो उससे बड़ी बेइज्जती कुछ वो नहीं हो मतलब सकता। अगर आप फेमस हो और पूरी जनता आपका लिरिक्स जानती है तो वो लोग वही अब कंप्लीट कर देते हैं। वो लोग कंप्लीट कर हाँ, देते बट हैं। अगर आप नए नए रैपर हो, अगर आप ओपन माइक में परफॉर्म कर रहे हो, जैसे कोई कंपटीशन में परफॉर्म कर रहे हो या कुछ हो गया, ऐसे सब चीजों पे तैयार रखता है आपको फ्री स्टाइलिंग। इट कम्स इन हैंडी कि अरे मैं तो लाइन भूल गया, अरे नहीं फ्री स्टाइल कर लेता हूँ। ये मैंने बहुत किया। I myself did in a TV show when I was in MTV Hustle. I forgot my lyrics because एक दिन पहले मैंने गाना बनाया था and अब they turned on the camera, वो लोग कैमरा ऑफ नहीं करेंगे because it's a live show, वो लोग बंद नहीं करने वाले, मेरे को गाना यादें नहीं है। So what was the option there for me अपने आप को बचाने के लिए? I just started doing a freestyle on spot। मैंने freestyle किया, अपने कुछ लिरिक्स को मैच करके एक पूरा ट्रैक बनाया उसी टाइम पे डन एंड that track become huge beside the people that on spot he did the freestyle। So freestyle इस तरीके से मेरे को पूरे एक लाइव शो में टीवी के सामने पूरे हिंदुस्तान के सामने freestyle saved me। So that's how it helped also। I think I got a lot of appreciation because of that and I'm happy मैं बच गया। कैन गैदर अराउंड सम ऑफ योर रैपर फ्रेंड्स, जितने भी आपके कलीग्स हैं जो रैप करते हैं साथ में, और आप उनके साथ फ्री स्टाइलिंग करना शुरू कर सकते हो। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी के साथ ही करना है, अगर आप अकेले घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना है तो वो भी कर सकते हो। बट जब मैं अगर हमारी बात बताऊँ, हम लोग साथ में जब भी फ्री स्टाइल करते थे तब सारे रैपर्स इंटरनेट पे एक दूसरे को खबर करते थे कि यहाँ इस जगह पे मिलना है। फेसबुक पे एक इवेंट बनता था और फिर हम लोग सब वहाँ पे मिलते थे। तो जो भी रैपर्स है किसी भी सिटी में हो, आप बाहर जाके इंटरनेट पे ढूंढ सकते हो कि कोई और रैपर है आपके सिटी में जो रैप कर रहा है, और आप उसके साथ मिलके कुछ फ्री स्टाइल करना शुरू कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने शुरुआत किया बॉम्बे में करना और दिल्ली में करना शुरू किया। दिल्ली के रैपर्स किसी एक जगह पे मिलते थे और वो लोग वहाँ पे एक साथ में मिलके रैप करते थे। वैसे आप भी अपना एक ग्रुप फॉर्म कर सकते हो या फिर अपने कम्युनिटी को फॉर्म कर सकते हो अपने सिटी में। अगर आपकी सिटी में ऑलरेडी एक कम्युनिटी है तो आप वहाँ जा सकते हो। आप बहुत सारे हिप हॉप गिग्स अटेंड कर सकते हो। कोई डीजे अगर हिप हॉप सेट प्ले कर रहा है तो वहाँ पे बहुत सारे हिप हॉप फैंस आएंगे, उनमें से शायद आप किसी ऐसे बंदे से मिलो जो रैपर है या जो बीट बॉक्सर है या कोई भी हिप हॉप चीज़ में कोई भी एक आर्ट फॉर्म कर रहा है, आप उसके साथ मिलके कोलैबोरेट करके फिर आप यू कैन जैम विथ हिम व्हेनेवर यू वांट टू। सो इट्स जस्ट कि आप बिकॉज वी हैव इंटरनेट, काफ़ी फ़ायदा है। हमारे टाइम पे नहीं था, तो इंटरनेट का यूज करके यू कैन फाइंड पीपल ऑफ द सेम इंटरेस्ट, यू कैन गेट अलोंग विद देम एंड देन यू कैन स्टार्ट रैपिंग विद देम, हेल्पिंग ईच अदर आउट। लाइक अस जब हम परफॉर्म करते हैं, मैं और धवल मान लो हम किसी एवेन्यू में परफॉर्म करते हैं, ऑलरेडी वहाँ पे हिप हॉप के फैंस आए हुए होते हैं, रैपर्स आए होते हैं हमें देखने के लिए जो बिगनर्स होते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट हिप हॉप का ये है इन इंडिया, व्हाट आई हैव सीन इन 10 years, जहाँ भी हिप हॉप गिग होता है वहाँ पे रैपर्स आते हैं, दे मेक अ स्मॉल सर्कल एंड दे स्टार्ट डूइंग देयर थिंग्स। भी शुरू हो जाता है, एक छोटा सर्कल बना के वहाँ लाइव शो चल रहा है, वो अपने एक सर्कल पे जैम कर रहे हैं, फ्री स्टाइल कर रहे हैं, रैप कर रहे हैं, या बाहर निकल के रोड पे। कभी-कभी ऐसा होता है ना, हम लोग के क्लब्स में शोज होते थे तो कुछ बच्चे होते हैं ना जो छोटे होते हैं उम्र में, जैसे 18 हो गया, 19 हो गया, तो उन लोग क्लब में एंट्री नहीं मिलती बिकॉज क्लब में अल्कोहल सर्व होता है। तो उन लोग, मैंने देखा ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग वेन्यू के बाहर खड़े रह के रैप करना शुरू करते हैं, सड़क पे सर्कल बना के सड़क पे, और ये हम लोगों ने बहुत किया है। ये हम लोगों ने भी किया है और पुलिस वालों ने भी आके भगाया हम लोगों को, डंडे वंडे बहुत पड़े, हम लोग का बूम बॉक्स तोड़ दिया था एक बार पुलिस ने, साइन फूड पे और एम्फी थिएटर में, बैंड्रा में, ऐसे सब जगह पे हम लोग ढूंढ के कुछ ना कुछ करते थे। तो ये कहीं पे भी आप You need to find a people from your city who is interested into the rap, make a small circle, start presenting your art, एक दूसरे को दिखाओ,
कि हम लोगों के पास क्या क्या है, किस तरह की स्किल्स है। फ्री स्टाइल करो, जैम करो, फ्री वर्सेस करो, एंड देन यू विल कम अप विद अ यूनिक आइडिया, और मे बी यू विल बी द फ्यूचर गैंग। आपको ये भी पता चलेगा आप बाकी लोगों से कितना अलग हो, Yes. हाउ मच यू स्टैंड आउट, और आप कितना मतलब डिफरेंट कर सकते हो बाकी लोगों से। आपका स्टाइल क्या है वो आपको शायद समझ में आएगा जब आप बाकी लोगों जैम करके पता चलता है एक दूसरे के साथ। यस। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि फ्री स्टाइल में हम लोग अलग अलग गेम्स खेलते हैं ताकि हम लोग का फ्री स्टाइल थोड़ा फन हो जाए, वो सेशन थोड़ा फन हो जाए। जैसे कि अभी हम लोग को एक वर्ड मिलेगा, उस वर्ड के हम लोग ऊपर मेट्रोनोम के ऊपर हम लोग राइम करने की कोशिश करेंगे, फ्री स्टाइल करने की कोशिश करेंगे। Give me a word and I'll start doing a freestyle in my way. जमीन। ज़मीन पे चल चल के मैंने सीखा ज़िंदगी को जीना, मुझे ना पता है क्या है होने वाला मेरे कल के साथ, मेरे आसपास मेरे खास दोस्त जो रहते कैलेंडर देखूं मैं तो दिनांक तिथि सब मेरी ज़िंदगी को बताती है कैसे मेरा कल आने वाला, मेरा पल आने वाला मेरे साथ, मेरे पास मेरा दोस्त बैठा मुश्किलों में देता मेरा साथ। ये है बकवास जो बात ये लोग बोले मुझे समझाते हैं करना क्या मुझे मेरे साथ। बेडशीट बदलो, ये ज़िंदगी है जैसे कोई बेडशीट, कभी होती है ख़राब कभी है साफ। So I think this is like a simple way of rhyming I'm doing right now. Simple, completely simple, but you can upgrade it once you practice this again and again. So Yeah, you it's like upgrade it. जैसे अगर आप अटकते हो कहीं पे, then just move on with a sentence. जैसे भीम कर रहा था, ये सेंटेंस को खींच रहा था, is adding more words to the sentence. So this was our very normal, very routine, classic freestyle. Basic hip hop freestyle जो हम लोगों ने अभी किया। And if you want to improve your rhymes, if you want to improve your spontaneity, your if you want to improvise, you should always practice freestyle.